God and Shiv. Chalo. You will be able to see now, right? Can you see? There may be internet connectivity problem in the class today, maybe guys. So if it happens, so don't worry about that, right? हो सकता है connectivity की problem हो सकती है आज, right? Okay, so let's begin. Okay, now you tell me when you are at station, जब आप station पे होते हो and आपको एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है, ठीक है? तो आप कैसे जाओगे? वेरी सिंपल आंसर. सौम्या, आपको एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है. हाउ विल यू गो? Yes. Am I audible to all of you guys? Hello. Hello. Yeah, ma'am. Okay. So there is a bridge, right? There is a bridge between platform number 1 and platform number 2, right? So you need a bridge, right? Similarly, in English grammar, there is a bridge. English grammar में भी एक bridge होता है. There is a bridge which connects two sentences, right? Okay. Now I will ask you some questions, right? I would like to start with Sonu. Okay, Sonu, you tell me your 2 hobbies. Tell me your 2 hobbies. आपकी 2 hobbies बताइए. Tell me your hobby. Yes. Hello. Chalo, मान लीजिए. Nobody is saying anything today. What happened? Okay, Soumya and Surendra, you two are here. What about Sonu? Sonu is not here in the class. Okay, no problem. Why only 2 students are present? Ma'am, Sonu is not in the class. At least Sonu came, but he has gone right now. Okay. Okay. Didn't you tell all the students to read or say something? Didn't you say them anything about the, about that material? आपने बताया नहीं सौम्या? Okay, no problem. चलो देखो, मान लीजिए मैं अपनी हॉबी बताती हूँ. I'm telling you my hobbies, ठीक है? My hobbies, ठीक है? Right? My first hobby is singing, right? First hobby is singing. Second hobby is cooking. And third hobby is traveling, right? Right? Singing, cooking, and traveling. How many hobbies I have? I have 3 hobbies, right? I have 3 hobbies. तो अगर मुझे बताना है अपनी हॉबीज के बारे में सेंटेंस में, तो मैं कैसे बोल सकती हूँ? You know, guys, I have 3 hobbies. First hobby is singing. Second hobby is cooking, and third hobby is traveling. अब इस सेंटेंस को आपको जोड़ के बताना है. You want to connect this sentence. How will you make in different way? कैसे बोलोगे? देखो, यहाँ पर एक सेंटेंस होता है. अगर मुझे बोलना है मुझे सिंगिंग, कुकिंग और ट्रैवलिंग भी पसंद है. मुझे सिंगिंग, कुकिंग और ट्रैवलिंग भी पसंद है. उस सेंटेंस को कैसे बोलोगे इंग्लिश में? कैन यू ट्रांसलेट? मुझे सिंगिंग, कुकिंग और ट्रैवलिंग भी पसंद है. मतलब मुझे सिंगिंग और कुकिंग के साथ ट्रैवलिंग भी पसंद है. अगर ऐसा सेंटेंस बनाना हो तो हाउ विल यू मेक दिस सेंटेंस? सुरेंद्र, सौम्या, कैन यू मेक? Yes? No idea? Okay, I'm giving you the answer. You know, I like singing, cooking, right? I like singing, cooking, as well as traveling. This is my answer. I like singing, cooking as well as traveling. Right? मुझे singing, cooking और traveling भी पसंद है. Traveling भी पसंद है. तो जब आप कोई भी बात बोलते हो और उसमें बहुत सारी चीजों के बारे में बोलते हो और फिर आपको कहना है ये और ये भी,
मुझे चाइनीज, पास्ता और बिरयानी पसंद है। मुझे चाइनीज, पास्ता और बिरयानी भी पसंद है। तो देयर आर 3 फूड आई लाइक। तो like biryani and Chinese noodles. वेरी गुड। तो सौम्या ने क्या किया? सौम्या ने यहाँ पर As well as well as what you say, ma'am? After Chinese noodles, what you say? देखो बेटा, मैंने कहा पास्ता, नूडल्स। मैम पास्ता, नूडल्स और मुझे क्या पसंद है? पास्ता, नूडल्स और बिरयानी पसंद है। तो ठीक है, मैं बना के देती हूँ। जैसे आई लव टू ईट, आई लव टू ईट नूडल्स, आई लव टू ईट नूडल्स, पास्ता, as well as बिरयानी, राइट? तो मैंने क्या किया, मुझे जो थर्ड वाला पॉइंट ऐड करना है उसके साथ मैंने किया एज वेल एज मतलब के साथ। मुझे नूडल्स, पास्ता और के साथ साथ बिरयानी भी पसंद है। जब आप किसी थर्ड चीज को, फोर्थ चीज को, एक्स्ट्रा चीज को ऐड करते हो बिना एंड यूज करे, मैं ऐसे भी तो बोल सकती हूँ ना सौम्या, आई लाइक नूडल्स, पास्ता एंड बिरयानी। आई कैन यूज एंड ऑल्सो। एंड क्या करता है? एंड दो सेंटेंस को कनेक्ट करता है। आई लाइक नूडल्स, I like pasta, I like biryani. Then I will combine all the sentences. I like noodles, I like pasta and biryani. But अगर आपको and use नहीं करना है, and तो सबको आता है. So let's learn a new word. And तो हमेशा use करते हैं, क्यों ना हम कुछ नया word use करें, right? So the new word is, new phrase is as well as. New phrase क्या है यहाँ पर सौम्या? As well as मतलब के साथ. यस तो आज का टॉपिक है, द टॉपिक ऑफ द डे इज कंजंक्शन। टॉपिक क्या है आज का? द टॉपिक ऑफ द डे इज कंजंक्शन। कंजंक्शन is the topic of the day. Conjunction, right? So what is conjunction? Conjunction is a word. Conjunction is a parts of speech. What is conjunction? Conjunction is a parts of speech, right? Soumya, I know there is only you in the class, right? I can see. Yes? It's okay. If others have not come, I was also saying. Okay. It's okay. अगर बाकी लोग क्लास में नहीं है, there may be some other issue with them, right? है ना? कोई बात नहीं, अपन आगे पढ़ते हैं। कंजंक्शन क्या करता है? दो सेंटेंस को कनेक्ट करता है। तो कंजंक्शन इज अ पार्ट्स ऑफ स्पीच। कंजंक्शन क्या होता है सौम्या? कंजंक्शन इज अ पार्ट्स ऑफ स्पीच which connect two sentences. दो सेंटेंस को क्या करता है? कनेक्ट करता है। ठीक है? जैसे और एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स सी सम मोर एग्जाम्पल्स। मैंने कहा आई लाइक पिज्जा, ठीक है? आई डोंट लाइक खिचड़ी, right? So there are two sentences. Sentence number one and sentence number two, right? Can you connect these two sentences? आप इन दोनों सेंटेंस को कैसे कनेक्ट करोगे सौम्या? How will you connect these two sentences? How will you connect these two sentences? मैंने कहा मुझे पिज्जा पसंद है, मुझे खिचड़ी पसंद नहीं है। I like pizza, but sorry,
as well as I No. don't like No. आपका पहला आंसर सही था सौम्या. Your first answer was correct. आपने अभी सही बोला था. I like pizza, but I don't like khichdi. That was correct. Your sentence was correct. क्योंकि देखो हिंदी में सोचो, मुझे पिज्जा पसंद है, मुझे खिचड़ी पसंद नहीं है. अब इन दो सेंटेंस को जोड़ना है. You have to join two sentences using a connector, conjunction. तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे? But. तो आंसर कैसे बनाओगे आप? I like pizza, but I don't like खिचड़ी, राइट? तो यहाँ पर हमने क्या यूज किया? हमने यहाँ पर यूज किया है बट. क्या यूज किया है सौम्या, सुरेंद्र? हमने यहाँ क्या यूज किया है? बट. तो बट यहाँ पर क्या हो जाएगा? बट विल बी कनेक्टर हियर. बट यहाँ पर क्या हो जाएगा? बट विल बी अ कनेक्टर हियर. दिस इज कनेक्टिंग टू सेंटेंसेस. ठीक है, अब देखो. ठीक है, एक और बात बताते हैं. मुझे फुटबॉल पसंद है. आई लाइक फुटबॉल. ठीक है, मुझे फुटबॉल पसंद है. आई लाइक फुटबॉल. ठीक है. आई डोंट लाइक टेनिस. ठीक है. सो हियर आर टू सेंटेंसेस. मुझे फुटबॉल पसंद है, मुझे टेनिस पसंद नहीं है, राइट? तो हाउ विल यू कनेक्ट दीज टू सेंटेंसेस? I like football, but I don't like tennis. Very nice, very good. So I like football, but I don't like tennis. That means सौम्या ने यूज किया है but connector यहाँ. तो but यहाँ पर क्या हो जाएगा? conjunction या connector. So but is the first connector. चलो अब और सेंटेंस मैं आपको बना के देती हूँ. अब आपको सोचना है. There is a test, एक थोड़ा सा टेस्ट है. मैं आपको और सेंटेंस दे रही हूँ. I am giving you more sentence. Now, yes. Any question, Soumya? I like match, but I don't like. मैम जहाँ पे don't आता है हमें वहाँ पे but यूज करना पड़ता है. हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है. क्या होता है? हाँ, कंट्रास्ट है. जैसे बट का मतलब, बट हम कब यूज करते हैं? जब पहला सेंटेंस पॉजिटिव हो, दूसरा सेंटेंस नेगेटिव हो. कंट्रास्ट में यूज करते हैं. यू आर करेक्ट, है ना? बहुत सिंपल है. ठीक है. अब मैं दो सेंटेंस लिखती हूँ यहाँ पर, ठीक है. अब आपको बताना है वहां बट यूज नहीं होगा. वहां बट यूज नहीं होगा सौम्या, बट वहां कुछ और यूज होगा. आप मुझे बताना वहां क्या यूज होता है. ठीक है. ओके. फर्स्ट सेंटेंस है आई वॉच कार्टून. पहला सेंटेंस है आई वॉच कार्टून. ठीक है. नाउ सेकेंड सेंटेंस इज I watch news. Second sentence है. So I watch cartoon is first sentence and I watch news is second sentence. अब इन दोनों को कैसे कनेक्ट करोगे? हिंदी में ट्रांसलेट करो, then connect it. I watch cartoon. मैम हमें हिंदी में भी ट्रांसलेट करना. बिल्कुल कर सकते हो. देखो पहला सेंटेंस का मतलब आपको पता है? पहला सेंटेंस का मतलब क्या है? मुझे कार्टून और आपका आंसर अभी भी सही है. आपने कहा और. I watch cartoon as well as I watch news. वेरी नाइस. देखो वेरी गुड. थोड़ा सा गलत है. हम बताते हैं क्यों गलत है. देखो आई वॉच कार्टून, आई वॉच. अच्छा ये बताओ इन दोनों सेंटेंस में कौन सा चीज कॉमन है? आई वॉच कॉमन है, आई वॉच कॉमन है ना दोनों में. ठीक है. तो जो कॉमन होता है उसको बार बार नहीं बोलते. हम आई वॉच को बस एक बार बोलेंगे, बार बार नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं? हम जोड़ रहे हैं. जैसे आप मैथ्स में क्या करते हो? व्हाट डू यू डू इन मैथ्स?
मैथ्स में जो कॉमन होता है उसको ब्रैकेट के बाहर निकाल देते हैं हम, ऐसा करते हैं ना सौम्या? मैथ्स में जब हम सॉल्व करते हैं तो ब्रैकेट के बाहर निकाल देते हैं, है ना, जो कॉमन होता है। इसी तरह से यहाँ पर आई वॉच क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ आंसर होगा आई वॉच कार्टून एज वेल as news. Very nice. This is the answer. I watch cartoon as well as news. सुरेंद्र, आपको समझ में आ रहा है? Are you getting this? जी मैम। Very good. जी मैम। Very good. Very nice. है ना? अच्छा, अगर यहाँ पर 3 सेंटेंस होते, अगर यहाँ पर 3 सेंटेंस होते, मतलब जैसे मैंने कहा आई वॉच कार्टून, आई वॉच न्यूज, अब मैंने लिखा आई वॉच वेब सीरीज, ठीक है, आई वॉच वेब सीरीज, राइट। तो 3 सेंटेंस हो गए। अब कैसे लिखोगे, आप कैसे लिखोगे सौम्या? I watch a cartoon. I watch cartoon news as well as web series. वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन, वेरी नाइस सौम्या। तो सौम्या ने इस बार क्या किया, करेक्ट सेंटेंस बोला। आई वॉच यहाँ कॉमन है, फिर यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं, तीनों को कॉमा यूज करेंगे। आई वॉच कार्टून, कॉमा, देन न्यूज, फिर हम ऐड करेंगे एज वेल एज वेब सीरीज। So next time when you want to add and, जब आपको and यूज करना है तो आप and भी यूज कर सकते हैं, बट अगर आपको as well as आता है तो आप वो वर्ड भी यूज कर सकते हैं, राइट? ओके, चलो सो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए मैंने आपको, आप मेरे घर में आए हो, यू कम टू माई होम, लाइक सुरेंद्र मेरे घर में आता है, सुरेंद्र एंड सौम्या, बोथ ऑफ यू आर इनवाइटेड एट माई होम, आप दोनों मेरे घर में आए हो, ठीक है। नाउ आई एम सर्विंग यू समथिंग, मैं आपको सर्व कर रही हूँ, राइट? तो मैं आपसे पूछूंगी आप क्या लोगे, चाय या कॉफी? आप क्या लोगे, चाय या कॉफी? तो सौम्या बोलेगी दोनों में से एक। सौम्या क्या बोलेगी, मुझे दोनों में से एक चाहिए। मैंने बोला चाय या कॉफी, दोनों में से कोई भी चलेगा, दोनों में से कोई भी एक, ठीक है। तो अगर आपको कोई चीज ऑफर कर रहा है और आपको चूज करना है और आपको ये बताना है कि मुझे उन दोनों में से एक पसंद है, उसके लिए कैसे बोलोगे? हाउ विल यू से दिस? उसके लिए यूज होता है ईदर, ईदर और। क्या होता है ईदर, ईदर और क्या होता है वर्ड सौम्या? ईदर और। तो कैसे यूज करोगे, हाउ विल यू यूज दिस? हम बताते हैं, आई विल टेल यू हाउ टू यूज दिस। जैसे I'm writing 2 sentences, then I will connect. अब मैं connect कर रही हूँ। I will eat Manchurian, right? I will eat Manchurian. And next sentence है I will eat noodles, right? ठीक है, तो 2 सेंटेंस है। पहला सेंटेंस है मंचूरियन एंड दूसरा सेंटेंस है नूडल्स। अब देखो, अगर मुझे बोलना है कि मुझे मंचूरियन और नूडल्स दोनों चाहिए, तो मैं बोलूंगी आई विल ईट मंचूरियन एज वेल एज नूडल्स, अगर दोनों पसंद है। बट अब आपको केवल एक ही चीज खाना है, या तो आप मंचूरियन लोगे या तो आप नूडल्स लोगे। यू हैव टू चूज वन, दोनों में से एक, दोनों में से एक। तो दोनों में से एक को हिंदी में क्या बोलते हैं? ईदर और। क्या बोलते हैं? दोनों में से एक, मतलब ईदर और, ठीक है। तो मैं बोलूंगी या तो मैं मंचूरियन लूंगी या तो मैं नूडल्स लूंगी। तो मैं बोलूंगी आई विल ईट, ध्यान देना कैसे बनाएंगे, यस, आई विल ईट ईदर मंचूरियन और नूडल्स। या तो मैं मंचूरियन खाऊंगी या तो मैं नूडल्स खाऊंगी, राइट? सो आई विल ईट ईदर मंचूरियन और नूडल्स। तो यहाँ पर ईदर और के बीच में मैंने कोई डिजाइन नहीं बनाई है। दिस इज नॉट अ डिजाइन हियर,
डॉट 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 आपको दिख रहा होगा। ये डॉट 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 क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि इस डॉट 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 के बीच में आपको कुछ ऐड करना है, जैसे ईदर मंचूरियन और नूडल्स, ईदर पास्ता और पिज्जा, ईदर रेड और ब्लैक, लाइक दिस। इसे मुझे बोलना है या तो ब्लैक या तो व्हाइट। कैसे बोलेंगे? या तो ब्लैक या तो व्हाइट। कैसे बोलोगे सुरेंद्र? ईदर ब्लैक either white or black. और ब्लैक। वेरी नाइस। ईदर व्हाइट और ब्लैक, ईदर ब्लैक और व्हाइट। मुझे बोलना है या तो चॉकलेट या तो वनीला। either Either chocolate or vanilla. or Very nice. vanilla. Either chocolate or vanilla. That means you have option to choose one thing, right? चलो, अब मैं एक सेंटेंस बनाती हूँ, ठीक है? मैं एक सेंटेंस बोल रही हूँ, आपको बनाना है। Are you ready, guys? Yeah, ma'am. Okay, ठीक है। मुझे बोलना है, ठीक है, मुझे या तो गोवा जाना है, मुझे या तो गोवा जाना है, या कन्याकुमारी जाना है। मुझे या तो गोवा जाना है या तो कन्याकुमारी जाना है। I have to go either Goa or Kanyakumari. Very nice. I have to go either Goa or कन्याकुमारी, राइट? और आप बोल सकते हैं I will go। सेंटेंस इस तरह से बना सकते हो, या तो मैं कन्याकुमारी जाऊंगी या गोवा जाऊंगी। I will go either Goa और कन्याकुमारी। वेरी नाइस, वेरी गुड। अब आप लोग को आ रहा है। सो सौम्या को तो समझ में आ गया है। सुरेंद्र, आपको समझ में आ गया है इधर और? जी मैम, आ रहा है। वेरी नाइस, है ना? तो इस तरह का सेंटेंस बहुत हम यूज करते हैं। चाय पियोगे कि कॉफी? यार चाय या कॉफी कुछ भी पी लूंगा, या तो चाय पीऊंगा या तो कॉफी पी लूंगा। अच्छा यार, हम लोग ना ट्रिप पे जा रहे हैं, तो पहली ट्रिप गोवा की है और दूसरी ट्रिप हमारी है जम्मू कश्मीर की। कहाँ जाओगे? वेयर विल यू गो? या तो मैं गोवा जाऊंगा या तो जम्मू कश्मीर जाऊंगा। तुम लोग डिसाइड करो। आई विल गो ईदर गोवा और जम्मू कश्मीर, लाइक दिस। आई विल ईट ईदर पास्ता और पिज्जा, राइट? लाइक दिस। या तो मैं डांस करूंगी। देखो एनुअल फंक्शन आने वाला है। या तो मैं डांस करूंगी या मैं सिंगिंग करूंगी। आई विल ईदर डांस और सिंग, लाइक दिस। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलो, वेरी गुड। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पहला जो कंजंक्शन पढ़ा था, वो पहला कंजंक्शन पढ़ा था हमने बट। बहुत इजी होता है बट। दूसरा कंजंक्शन हमने क्या पढ़ा था? एज वेल एज, याद है? रिमेम्बर? थर्ड कंजंक्शन हमने पढ़ा था ईदर और। वेरी गुड, ईदर और। ठीक है। अब नेक्स्ट कंजंक्शन हम पढ़ने वाले हैं, वो भी बहुत अच्छा है, दैट इज नीदर नॉर। neither nor means both no. ना, देखो सबका मीनिंग मैं लिख देती हूँ, सबका मीनिंग मैं आपको बताती हूँ। हिंदी में बता रही हूँ मैं मीनिंग, आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। बट का मतलब क्या होता है? पर। बट का मतलब पर या लेकिन, आप सबको पता होगा, ठीक है। एज वेल एज मतलब के साथ, इसके साथ ये भी। बट मतलब लेकिन, लेकिन, किंतु, परंतु, राइट? यू नो एवरीथिंग। ईदर और मतलब दोनों में से एक। ईदर और मतलब दोनों में से एक, ठीक है। और नीदर नॉर मतलब होता है दोनों में से कोई भी नहीं। दोनों में से कोई भी नहीं, राइट? दोनों में, यस, दोनों में से कोई भी नहीं। अच्छा, जैसे मुझे बोलना है, मुझे बोलना है ना तो मैं डांस करूंगी ना ही गाना गाऊंगी। मैं तो एंकरिंग करूंगी। मैं ना ही डांस करूंगी ना गाना गाऊंगी, मैं तो एंकरिंग करूंगी। neither I will do neither dance nor singing
I'll do एंकरिंग. anchoring. वेरी गुड, वेरी नाइस सौम्या, वेरी नाइस. आज तो सौम्या सही से आंसर दे रही है, क्या बात है. ओके तो देखो सेंटेंस इज करेक्ट. नेदर नॉर मतलब होता है दोनों में से कोई भी नहीं, है ना. तो ऐसे भी बना सकते हैं, सौम्या का आंसर भी सही है, और ऐसे भी बना सकते हैं. आई विल, नेदर पहले भी यूज कर सकते हो आप, और जैसे मैं बता रही हूँ वैसे भी यूज कर सकते हो. आई विल नीदर, नीदर बोलते हैं इसको. आई विल नीदर डांस नॉर सिंग. आई विल नीदर डांस नॉर सिंग. अच्छा ये बताओ, नीदर के बाद मैंने यहाँ पर डॉट डॉट लगाया है, और नॉर के बाद भी डॉट डॉट लगाया है. क्यों लगाया है? क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ वर्ड फिट करना है. जैसे नीदर डांस नॉर सिंग, तो नीदर और नॉर के बाद में मैंने क्या करे हैं, दो वर्ड लिखे हैं. इसको मैं रेड कलर से कर देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए. हाईलाइट कर रही हूँ मैं, राइट. सो नीदर डांस नॉर सिंग. तो नीदर के बाद मैंने क्या लिखा, डांस. नॉर के बाद क्या लिखा, सिंग. इस तरह से आप सेंटेंस बनाओगे. तो ना ही मैं डांस करूंगी, ना ही मैं सिंग करूंगी, मैं तो एंकरिंग करूंगी. आई विल डू एंकरिंग. आई विल नीदर डांस नॉर सिंग. अच्छा अब सुरेंद्र बताएगा. ठीक है सुरेंद्र, यू हैव टू टेल मी. आपको बोलना है Yes, sir. ना ही मुझे पेटिस खाना है, ना ही कचौड़ी. ना ही मुझे पेटिस खाना, ना ही कचौड़ी. मुझे तो समोसा खाना है. मुझे ना ही पेटिस खाना है, ना ही कचौड़ी. मुझे तो समोसा खाना है. Ma'am, Surendra left. But I can see him in the class. He is visible to me. Are you in the class? Surendra, yes, he is in the class. I can see him. It's okay. Soumya, you tell me the answer. Yeah. Question. हाँ सेंटेंस है, मैं ना ही कचौड़ी खाऊंगा, ना ही पेटिस. मैं तो समोसा खाऊंगा. Ma'am, कचौड़ी की बात क्या बोला? मैं ना ही कचौड़ी खाऊंगी, ना ही पेटिस. मैं तो समोसा खाऊंगी. ना ही I कचौड़ी, eat. ना ही. अच्छा सुरेंद्र बोला है. Neither eat kachori nor petis. I will eat samosa. समोसा. वेरी नाइस. सुरेंद्र आपका भी यही आंसर था. जी मैम. वेरी लेकिन गुड. मैम मेरा ईट पहले लग रहा था. आई ईट. हाँ आई ईट कैसे बोलिए, फिर से बताइए. आप बताइए सुरेंद्र. आई ईट नाइदर fritters nor risotto. नॉर कचौड़ी, है ना. ठीक है. देखो आपने क्या करा, देखो मैंने सेंटेंस में क्या बोला, मैंने कहा ना ही मैं पैटिस खाऊंगी, ना ही कचौड़ी. तो अगर आप सेंटेंस को ट्रांसलेट करोगे ना सुरेंद्र, तो फ्यूचर टेंस आ रहा है. ना ही मैं ये खाऊंगी, ना ही मैं वो खाऊंगी. खाऊंगा, खाऊंगी. फ्यूचर टेंस आ रहा है, इसलिए आपको विल ऐड करना पड़ेगा. ठीक है ना सुरेंद्र. ठीक है, क्लियर है. आई विल नीदर ईट पेटिस नॉर कचौड़ी. तो यहाँ पर जो पेटिस है वो उसको हाईलाइट कर देती हूँ. तो यहाँ पर मुझे नीदर ऐड करना है. नीदर NEITHER. ठीक है. आई विल ईट नीदर पेटिस नॉर कचौड़ी. क्लियर है. चलो अब मुझे बोलना है एक और लास्ट सेंटेंस बताओ दोनों. आपको बोलना है ना ही मैं बर्थडे पार्टी में जाऊंगी, ना ही शादी पार्टी में. मैं तो पिकनिक पे जाऊंगी. I will not go neither birthday party nor marriage. Repeat again. Surendra, you tell me. I will neither birthday party nor marriage. Verb, where is verb? आप लोग अब दोनों ने वर्ब नहीं बोला. मेन वर्ब तो बताओ. बिना वर्ब के सेंटेंस नहीं होगा. गो कब की बोलोगे आपने. गो. I will go. Neither birthday party nor marriage. वेरी गुड. आप लोगों ने गो स्किप कर दिया. बिना वर्ब के तो सेंटेंस गलत हो जाएगा ना. तो आई विल गो. इसको नाइदर नहीं बोलते सौम्या, इसको बोलते हैं नीदर. क्या बोलते हैं? नीदर. ईदर, नीदर. आई विल गो नीदर
बर्थडे पार्टी, I will birthday neither party go. nor marriage party. I will neither go. I will neither के बाद आएगा go. I will neither go to birthday party Nor nor marriage party. nor party. marriage party. Very good. I hope कि आपको clear है. So next time जब आपको दोनों में से कुछ नहीं करना है तो आप इस तरह का सेंटेंस यूज कर सकते हो. तो हमने कितने कंजंक्शन पढ़े? लेकिन यानी बट पहला कंजंक्शन पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा एज वेल एज मतलब के साथ, फिर ईदर और फिर नीदर नॉर. क्लियर है गाइस? Yeah. ओके ओके, चलो अब काम करते हैं. अब एक और कंजंक्शन है जो आपको आता है, बहुत ही इजी है, वो सबको आता है, बच्चों को आता है, वो है एंड. एंड का मतलब होता है और. एवरीबडी नोज दिस, है ना? तो एंड